नेट प्रॉब्लम आ गई। फाइन, आगे होना चाहिए। So now continuing the same where we left in the last class. In the last class, we understood the meaning of magnetism, then natural magnet and artificial magnet, the properties of magnet, and how the magnetic field is associated with the Earth and human body. That's what we have seen in the last class. The last class was just the introduction of magnetism. In today's class, we will practically, technically understand the meaning of magnetic field. Ah, good. आगे इसके nice. आज के सेशन में हम ढंग से समझ पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रैक्टिकली मतलब क्या है. See, before 1820, it was assumed that there is no direct connection between electricity and magnetism. बहुत ध्यान से सुनिएगा आज की क्लास. आज की क्लास में भी आपको 90% से ऊपर कंटेंट बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा. और आज का सेशन ही पूरे के पूरे चैप्टर का बेस है, राइट. So before 1820, it was assumed that there was no direct connection between electricity and magnetism. But Oersted, a physician, a scientist, conducted an experiment and who procured that particular information and created a direct relation of electricity with magnetism, and vice versa is also true. So in today's session, we'll understand the meaning of, we are about to study the phenomena known as electromagnetism. The branch of physics that deals with the study of magnetism due to electricity is known as electromagnetism. Oersted conducted an experiment by placing a magnetic needle, right, over a vertical pivoted support and place that magnetic needle just below a current carrying conductor as shown in the figure. They took a magnetic needle, this is a magnetic needle, and places just below a current carrying conductor. When the switch is closed, current flows through it, as shown in the figure. अब सबका फोकस यहाँ होना चाहिए. See, once the switch is closed, the above circuit is regarded to be a closed circuit and current starts flowing from positive terminal towards the negative terminal. And the moment it happens, the magnetic needle, which is just placed below it, gets deflected. And let it gets deflected in this direction. This direction. Then the switch is open, circuit is open now, nothing happens to it. Again, the switch is closed, again the deflection occurs. Now, if I suppose to change the direction, make it negative, direction of current, make it negative and this one as positive, the direction of current would have been from this side, the direction opposite to the previous one. Then in that case, the magnetic needle again deflects, but in a direction opposite to the previous one now. It gets deflected in this one.
Now the question arises, what makes the needle to get deflect from its mean position? ये इस तरीके से ठहरा हुआ है, अपनी मीन पोजीशन से डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो सीधी सी बात है, हमने नाइन्थ क्लास के अंदर न्यूटन्स लॉ पढ़ा है और हम जानते हैं कि अगर ये चीज रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहनी चाहिए बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन इसका डिफ्लेक्शन जो आया बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड दैट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इज नोन एज फोर्स, राइट। तो दैट मींस द मैग्नेटिक नीडल मस्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स, उस पे कोई ना कोई फोर्स लगी है, due to which the magnetic needle gets deflected, right, as shown in the figure, depending upon the direction of current. The deflection acquired by the magnetic needle also changes, right? So now the question arises, what is the cause behind this force? What's the reason behind this force experienced by the magnetic needle so as to get deflected from its mean position? The moment switch is closed, current starts flowing from negative towards the positive terminal, and this current which is available in the wire, right, creates its own magnetic field. The current is flowing in the wire creating its own magnetic field that interacts with the magnetic field of the magnetic needle, and hence the two different magnetic needles superimposed onto one another, leading to the development of a force experienced by this needle, which makes the needle to get deflect. यानी कि ये साबित किया गया कि जो वायर के अंदर करंट जा रहा है उस करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक नीडल की तो नेचुरली अपनी है, तो दो अलग किस्म की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर गई होंगी जिसके कारण मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट ने एक बात साबित कर दी, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, टेक्निकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो उसने एक फाइनल स्टेटमेंट दी, ए मूविंग चार्ज एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द कंक्लूजन अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट लिखो, a moving charge acts as a source of magnetic field. मूविंग चार्ज अपने आप में सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, मान लिया मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। 12th क्लास में आप एक रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है स्नो रूल। सिंपल मीनिंग है स्नो रूल का कि when the direction of current is from south towards north in the wire, then the magnetic needle gets reflected towards west direction. Snow on the S stands for south, north of west. Snow rule states that when the direction of current is from south towards north in the wire itself, then the deflection of the needle takes place in the west direction. This is Snow rule. So the development of force which creates the deflection in the magnetic needle must be due to the superimposition of two different kind of magnetic field, the magnetic field of the current carrying conductor and the magnetic field of the magnetic needle. These two different fields interact together, leading to the development of force experienced by the needle and hence becomes the cause of the deflection. यहां एक बात साबित हुई कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं यानी कि करंट है, तो करंट की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अब बात यह उठती है कि हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई किया करंट कैरिंग कंडक्टर की को, राइट, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन भी इन टर्म ऑफ फोर्स ही करेंगे, क्योंकि असली बात कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने आप एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसका पता फोर्स के कारण लगा। तो फोर्स, द फिनोमिना विल बिकम द रीजन टू डिफाइन, टू क्रिएट ए टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट्स व्हाट वी आर अबाउट टू अंडरस्टैंड नाउ। नॉर्मली ये मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, पिछली क्लास में भी देखा था हमने, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट इज द स्पेस, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर भी हम कह सकते हैं is the space around the current carrying conductor or around the magnet itself in which the magnetic influence can be experienced, normal language में तो हम यही कहते हैं।
लेकिन अब हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज मूविंग इन ए पर्टिकुलर स्पेस। अब जो मैं कह रहा हूं ये प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, ये समझने वाली बात है। और थोड़ा आप इसको इस तरीके से देखिए, आप जहां भी बैठे हुए हैं अपने कमरे के अंदर, आप मान के चलें कि आप एक बार मैग्नेट के ऊपर बैठे हुए हैं और वो एक्सटेंड आपसे आगे भी हो रही है, या आप बार मैग्नेट आपके सामने रखी हुई है और लेट इट्स विड्थ इज कंसीडर टू बी अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर और लेंथ मान लिया उसकी लगभग 3 मीटर है। इतनी बड़ी बार मैग्नेट आपके सामने नीचे फ्लोर पर रखी हुई है, तो बार मैग्नेट बड़ी है तो क्वाइट ऑब्वियस है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस भी मान लिया आप तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, दैट इट कम्स ओवर देयर। लेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस बार मैग्नेट अवेलेबल ऑन द फ्लोर राइट राइजेस अबव माय हेड, राइजेस अबव योर हेड एज वेल राइट। अब देखिए क्या मैं समझा रहा हूँ, थ्री डायमेंशन, देखो फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ थ्री डायमेंशन। देखो 9th क्लास में हमने जो फिजिक्स पढ़ी थी वो दिखने वाली चीजों के बारे में पढ़ी थी, कार हमें दिखाई देती है, बस हमें दिखाई देती है, ट्रक हमें दिखाई देता है। तो हमने जो फिजिक्स हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, जो 11th में आप पढ़ोगे, वो सब विजिबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में है। लेकिन 10th में जो हम पढ़ रहे हैं राइट, जो हम पढ़ भी चुके हैं और जो अब हम 12th में पढ़ने वाले हैं, वो इनविजिबल थिंग्स के बारे में है। भाई मैग्नेटिक फील्ड किसने देखी है, करंट किसने देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसने देखी है। तो जो चीज दिखाई नहीं देती हम उसे एनालाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर उसे ढंग से समझना है तो हमारा 3 डायमेंशनल व्यू क्लियर होना बहुत जरूरी है और वो खुद की क्रिएटिविटी के साथ होना चाहिए। तो मान लिया ये बार मैग्नेट नीचे रखा हुआ है और ऊपर हेड तक मेरी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो क्वाइट ऑब्वियस है ये एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर, एक मिनट बेटा, तो हर एक लाइन के बीच में, हर एक लाइन में, मान लीजिए इस पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहा हूं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, इस लाइन की मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी, नीचे की लाइन की भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, मैं एक बात कर रहा हूं, एट ए गिवन पॉइंट राइट इज फिक्स्ड इन द गिवन स्पेस राइट। अब ये जो बार मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड मेरे सर के ऊपर से भी जा रही है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर क्या है, क्या यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मुझे अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा। अब ये जो बार मैग्नेट भी है ना, ये मान के चलिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हमें मालूम है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। और जिस मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं वो आउटर स्पेस के अंदर है, अबाउ द बार मैग्नेट में है, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ, इस तरीके से। और इस पॉइंट पे मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं यहां पर एक चार्ज को रखूंगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रखूंगा। अब इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन को मिनिमम अमाउंट चार्ज लेके चलते हैं 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स राइट। तो मान लिया सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है यहां पर, अब मैं इस चार्ज को इस पॉइंट के ऊपर से पास करूंगा, मूविंग चार्ज है ये ध्यान रखना। मान के चलिए वो रेस्ट में है, चार्ज रेस्ट में, और मैंने उस पॉइंट पे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मैंने उसे वहां रख दिया, मुझे नहीं पता लगेगा क्या मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट की अगर मुझे निकालनी है तो मुझे मूविंग चार्ज लेना होगा, चार्ज एट रेस्ट नहीं लेना होगा, जो कि मैं मैथमेटिकली प्रूव भी करने वाला। अब इस पॉइंट के ऊपर से मैं एक चार्ज को गुजारूंगा, यानी कि एक मूविंग चार्ज होना चाहिए। अब वो जो मूविंग चार्ज होगा वो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मान के चलिए मूविंग चार्ज मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से मूविंग चार्ज भी इस पॉइंट से यूं गुजर गया, सीधा डायरेक्शन में मूव कर रहा है राइट। या मूविंग चार्ज में मूव इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, पहले नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री राइट और नॉट। भाई जब when the moving charge is moving in the direction of magnetic field, so that means there is no angle, there is no angle between the moving charge and the direction of magnetic field, both are collinear lines। अगर हम मूविंग चार्ज को एक लाइन क्रिएट कर दें उसके डायरेक्शन को और मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों कोलिनियर हो गई, और कोलिनियर के बीच में कोई एंगल नहीं होगा, राइट और नॉट।
पैरेलल हो गई ना, पैरेलल कह दो, कोलिनियर कह दो, लेकिन डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड तो वही है ना, तो एंगल तो दोनों लाइन के बीच में जीरो हो गया, राइट बेटा? है बेटा? कोई साइड नहीं, मैं यूं कह रहा हूं कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ये है, चार्ज इज आल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज का एक वेक्टर ले लूं, तो दैट मींस टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जैसे आपने कहा अभी, एक तो वेक्टर हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर नॉर्थ टू साउथ, एक हो गया वेलोसिटी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो दोनों अगर पैर कोलिनियर भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, तो एंगल तो दोनों के बीच में जीरो है। इस तरीके से देखिए आप, एंगल तो दोनों के बीच में जीरो है। अब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये वेलोसिटी वेक्टर। अब हुआ क्या कि मे बी पॉसिबल चार्ज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो इस तरीके भी मूव कर सकता है। तो अब इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल देखेंगे, तो ये देखिए, ये इधर जा रहा है, ये अब इधर की तरफ आ रहा है, तो 180 डिग्री के एंगल पे मूव कर गया है नहीं ये। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करूं, नॉर्थ टू साउथ, और ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? दैट मींस व्हेन द चार्ज इज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री। बेटे ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और चार्ज साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो दोनों वेक्टर को मैं जोड़ देता हूं। अभी दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच में? क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है, थोड़ा सा मैं हायर क्लास के बारे में बता रहा हूं। जब अलग अलग वेक्टर्स होते हैं ना, तो उनको हम ऐड करते, ज्वाइन करते हैं उसे, राइट? तो ज्वाइन करने के बाद हमें दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल मिल जाता है, राइट? जैसे यहाँ दोनों वेक्टर्स थे ना, तो इनको ज्वाइन किया तो दोनों एक ही वेक्टर बन गए, तो दोनों एक ही वेक्टर बन गए, तो एंगल तो जीरो हो गया, तो यहाँ 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो कहने का मतलब है व्हेन द चार्ज इज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल इज फाउंड टू बी 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि यहाँ अगर एक पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो चार्ज हो सकता है कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से भी जाए, अगेंस्ट द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड भी जाए। इट में मूव बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ, बाय क्रिएटिंग एन एक्यूट एंगल एज वेल। इस पॉइंट से जाते समय वो एक एक्यूट एंगल भी बना सकता है या नहीं? एन एक्यूट एंगल, द एंगल दैट लाइज बिटवीन 0 and 90 डिग्री, चार्ज इस तरीके से भी मूव कर सकता है, इस तरीके से भी, बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, एक्यूट एंगल, राइट? और इसी तरीके से चार्ज में मूव एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन, 90 डिग्री से भी मूव कर सकता है, राइट? तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? रूल क्या कहता है? एक मूविंग चार्ज को मूव करा दूंगा। अगर वो मूविंग चार्ज मूव करेगा, तो हो सकता है सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के मूव करे, हो सकता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करे, हो सकता है बाय मेकिंग एन एक्यूट एंगल, और बाय मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री, और बाय मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि मूविंग चार्ज तो किसी भी दिशा में मूव कर सकता है या नहीं? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग और नॉट? जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं टेक्निकल कॉज समझा रहा हूं, ये कोई नहीं समझाएगा, गारंटी देता हूं मैं आपको, और आपको बेहतर समझ में आया चैप्टर में, इसलिए समझा रहा हूं। मैं इसको निकाल भी सकता था, सीधा मैं आगे भी बढ़ सकता था। आप समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं सभी को? बड़ा मुश्किल है, जब स्टूडेंट्स नहीं दिखते ना, तो पढ़ाना बड़ा मुश्किल लगता है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ रहा है जो मैंने कहा है यहाँ तक। और मैंने आपसे ये कहा है कि आप अपने आप को इमेजिन करो, आपके सामने बार मैग्नेट है, और ऊपर तक, आपके सर के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और यहाँ आपने अपने हेड के थोड़ी दूरी के ऊपर, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड जाननी है, तो आप यहाँ से मूविंग चार्ज को मूव कराएंगे, राइट? अब मूविंग चार्ज उस पॉइंट से मूव करेगा, तो मूविंग चार्ज है। अभी ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ने बात क्लियर कर दी, मूविंग चार्ज एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो आपके धरती पर रखी हुई बार मैग्नेट है उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट और नॉट? दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर गई,
जिसके कारण ये जो चार्ज जिस दिशा में जा रहा था उस पर फोर्स लगेगी, उस मूविंग चार्ज पे फोर्स लगेगी या नहीं, और फोर्स लगने के कारण वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो अपना रास्ते से अलग हो सकता है। तो वो कब रास्ते से अलग होगा, कब उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, कब उस पर मिनिमम फोर्स लगेगी, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और वही हमें मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भी देगा, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, right, is expressed in terms of the force experienced by the moving charge placed at that point or passing through that point, right, and how to, अब जब वो चार्ज मूव कर रहा है तो उसको हम कुछ इस तरीके से देखेंगे बेटा, मेरी लिखो इसको, obtain an expression for the magnetic field, obtain an expression for the magnetic field in terms of moving charge, in terms of the force, यूं लिखिएगा, in terms of the force experienced by the moving charge. अभी मैं लिखवाऊंगा, तो मैं तो समझा रहा हूं, अभी अभी मैं इस चीज को लिखवाने वाला हूं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड डायरेक्शन, थ्री डायमेंशनल डायरेक्शंस को ले रहे हैं हम यहाँ पर, थ्री डायमेंशन है, ये है, मान लिया एक्स है, उसके परपेंडिकुलर वाई हो गया, और एक्स और वाई के परपेंडिकुलर लाइन जेड हो गया, क्लियर हो गया, एंड ऑल द थ्री लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर एज शोन इन द फिगर इटसेल्फ, राइट। अब ये जो मूविंग चार्ज है, लेट अस कंसीडर, जिस चार्ज की मैं बात कर रहा था कि ये हमारी डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट के ऊपर अगर वो चार्ज मूव कर रहा है, लेट दैट चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू। सो द फोर्स एक्सपीरियंस, ध्यान से देखिएगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फोर्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फोर्स, राइट, एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज। तो पहला फैक्टर है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, 1 कूलम पे ज्यादा लगेगी, 2 कूलम पे और भी ज्यादा लगेगी, 3 कूलम पे और भी, so on and so forth. So the force experienced by the moving charge through the point of consideration is directly proportional to the magnitude of the charge. Second, the force is also directly proportional to the component of velocity. अब वो चार्ज मूव कर रहा है, अगर वो चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी है, अगर उसमें वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर है, तो उस वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूं, एक होता है v sin थीटा, एक होता है v cos थीटा। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैंने लिखा है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले इसका मैथमेटिकल वर्जन समझ लीजिए। ये वेक्टर्स 12th क्लास 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, टू डायमेंशनली ले रहा हूं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, राइट। मान लिया कि ये वेक्टर है वेलोसिटी, या कोई भी वेक्टर ले सकते हो आप ऐसे, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है या नहीं, एक एक्यूट एंगल थीटा बन रहा है इसका। तो अब मैं काम करता हूं इस वेक्टर को, whensoever any vector quantity makes an acute angle with respect to the horizontal direction, it may resolve into its two component, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो सकता है। एक्स कंपोनेंट को कहेंगे, एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो होगा v cos थीटा, और जो y एक्सिस होगी जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस है वो होगा v sin थीटा। अब बात उठती है कैसे होगा, चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छे ढंग से कर चुके हैं तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसको मैं थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन से, आपको लगेगा कि सर ये आप बहुत एडवांस लेवल का बता रहे हो, ये तो सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों करा रहे हो।
ये कराऊंगा तो ही चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब इट्स अप टू यू टू अंडरस्टैंड इट, इसलिए बिल्कुल माइंडफुली क्लास में बैठना। अब आप ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर दिया और नाम दे दिया इस फिगर को, एक रेक्टेंगल बन गया ना, OABC, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी कह दो आप इसे, राइट। तो अब अगर मैं यहां पर यूज करता हूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो v है, तो बेस आ गया नहीं v cos थीटा। इसी तरीके से अगर ये थीटा है तो ये थीटा, क्योंकि BC और OA तो पैरेलल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा AB, हम यहां से भी देख सकते हैं, AB डिवाइड बाई V, और मैं कह सकता हूं OC डिवाइडेड बाई V, बात तो एक ही है, नहीं। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो OC किसके इक्वल आया बेटा, एक मिनट जरा इसकी बैटरी लो हो रही है। बेटा OC की वैल्यू क्या है, OC इज इक्वल टू V साइन थीटा हो गया या नहीं। तो आप ये देखिए कि यहां पर इस पॉइंट की मैं बात कर रहा था और चार्ज यू मूव कर रहा है, मान लिया, तो चार्ज इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट और नॉट। दिस चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v, making an angle theta with the direction of magnetic field. Isn't it this charge will have with its velocity two components, one is in this direction v cos theta, another one in this direction v sin theta, right or not। बेटा क्लियर है, जरा बुलाना एक बार सिद्धार्थ को। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो चार्ज यहां से मूव कर रहा था, इसका एक कंपोनेंट v cos थीटा हुआ और दूसरा कंपोनेंट v sin थीटा हुआ। दिस v sin थीटा isn't it is perpendicular to the direction of magnetic field। सब मैं आपसे कह रहा हूं, अपने सामने अज्यूम करना है आपने, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी, यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं यहां से चार्ज मूव करा रहा हूं विद वेलोसिटी v, तो वो v जो है एक थीटा एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो क्या v cos थीटा, v cos थीटा वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड v sin थीटा वुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं भाई, सबको क्लियर है ना। दैट्स, तो अब जो फोर्स लगेगी, अब ध्यान से सुनिएगा, जो फोर्स इस पर्टिकुलर चार्ज पर लगेगी वो फोर्स निर्भर करती है v sin थीटा पर, ना कि v cos थीटा पर। तभी मैंने क्या लिखा है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। तो पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, पेंसिल चार्ज नहीं कर रखी, एक मिनट बच्चों के फेस आ ले आओ फटाफट, ऐसे चार्ज नहीं, 5% बैटरी रह रही है उसमें, अभी दिखा रहा है उसमें, ध्यान रखना चाहिए बेटा। क्या, हाँ हाँ कोई बात नहीं, क्या ये बात समझ आई आपको, राइट। इन द मीनवाइल पेंसिल चार्ज हो रही है, आपको मैं फाइनली बोल रहा हूं, ये हमारा चार्ज था विद वेलोसिटी v, ये थीटा था। भाई 12th में भी 80% बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, अगर आपको समझ आ रही है तो चैप्टर पकड़ में आ गया आपके। तो ये हो गया v cos थीटा, तो जो फोर्स लगेगी वो v cos थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, v sin थीटा, एंड v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट और नॉट। वो अभी मैं बताऊंगा, वो क्यों अभी मत पूछो, आप ये समझो कि वो किस पे डिपेंड करेगी अभी, v sin थीटा पर। इज इट क्लियर। तो जो फोर्स लगेगी, पहला फैक्टर है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी।
दूसरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा एंड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो बाहर मैग्नेट आपने नीचे रख रखी है उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी उस मूविंग चार्ज के ऊपर। अब हम इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग द थ्री, what I should get? F is directly proportional to Q V B sin theta. Agreed? अब यहां पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैं K यूज कर रहा हूं। सीजे सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 है, तो F का फॉर्मूला आ गया Q V B sin थीटा, यानी कि the force experienced by the moving charge which makes an angle theta with the direction of magnetic field, the magnitude of that force is Q V B sin theta. Agreed? अब देखिए ये फॉर्मूला बेटा जी क्या सबको क्लियर है? प्लीज टेल मी। नाउ इफ इट इज क्लियर टू यू देन अब इसको जरा ध्यान से देखिए, कुछ केसेस देखते हैं। केसेस, पहला केस है जब थीटा 0 डिग्री होगा तो एफ की वैल्यू क्या होगी? कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर थीटा 0 है तो एफ की वैल्यू क्या है? क्योंकि साइन 0 होता है या नहीं हम जानते हैं। तो थीटा 0 का मतलब क्या है? उस पॉइंट से अब चार्ज यू ना मूव करके, isn't it the charge moving in the direction of magnetic field? If the charge is moving in the direction of magnetic field, तो v cos theta तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में है, इसलिए v cos theta पे डिपेंड नहीं करता फोर्स। यानी कि मूविंग चार्ज अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वो सीधा चलता जाएगा, अपने रास्ते से नहीं जाएगा, वो अपने रास्ते पे ही जाएगा सीधा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। पहली बात। दूसरा, अगर बेटे यहां मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर दिया साइन 0 0 होता है, तो 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स 0 हो गई या नहीं? ये मैथमेटिकल एनालिसिस और लैब के अंदर ये प्रैक्टिकली पाया गया रिसर्च में, और यहाँ जो हम रिसर्च में करते हैं उसे मैथमेटिकल वर्जन भी तो कन्वर्ट करते हैं, राइट? दूसरा, थीटा अगर 180 डिग्री है तो भी फोर्स 0 होगी। क्यों? क्योंकि याद रखना, यह आप हायर क्लास में पढ़ेंगे 11th में, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। कहने का मतलब है इफ द चार्ज इज मूविंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टिल इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तीसरा, द थर्ड वन, व्हेन थीटा हैपेंस टू बी 90 डिग्री तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो क्यू वी बी, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी? when the charge moves it by making an angle of 90 degree with the direction of magnetic field, the charge experiences maximum force. Got it or not? तो ओवरऑल बात कहने की क्या हुई? अगर हम इसको समराइज करें फिलहाल यहां तक जो भी हमने समझा है, if a bar magnet whose magnetic field which we are supposed to find out at a particular point, the whole job is to take a moving charge to pass through that point. If that moving charge moves in the direction of magnetic field, it experiences no force. If it moves by making an angle of 90 degree, it experiences a maximum force. That is what we understood, right or not? तो अब जो हमें समझ आया है वो इस फार्मूले के थ्रू समझ आया है, तो क्या मैं इसे F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा में, मुझे तो बी में इंटरेस्टेड था ना, फोर्स में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मुझे, इसे हम कहेंगे F क्यू वी साइन थीटा। क्या मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं जैसे मैंने नीचे लिखा है?
Agreed? Now see, magnetic field at a point in the uniform magnetic field is defined as a force experienced by the moving charge. ध्यान से सुनो, अब ये ना बी में इक्वल टू एफ बाई क्यू बी साइन थीटा है ना। अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, टेक्निकल डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, magnetic field at a point in a uniform magnetic field is defined as the force experienced by the moving charge moving with certain velocity at an angle of 90 degree, at an angle of 90 degree with the direction of magnetic field. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is defined as, is expressed as the force experienced by the moving charge moving with velocity v at an angle of 90 degree with the direction of magnetic field। क्योंकि v sin थीटा की तो इंपॉर्टेंस है, v cos थीटा की नहीं है। तो जो मैंने कहा समझ आया? थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं थीटा 90 ना लेकर फिलहाल sin थीटा डेफिनेशन दे रहा हूं, राइट? हाँ, मैक्सिमम फोर्स लगेगी तो मैक्सिमम हमें प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन फिलहाल अभी 90 यहां नहीं लिख रहा, राइट? क्योंकि मैं टेस्ला की डेफिनेशन देना चाहता था। चलो मैं यूं कर देता हूं बस, sin 90। अब क्लियर? तो लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, magnetic field at a point in a uniform magnetic field, magnetic field at a point in a uniform magnetic field is expressed in terms of the force, is expressed in terms of the force, is expressed in terms of the force experienced by the moving charge, experienced by the moving charge moving with velocity v, moving with velocity v in a direction, moving velocity v in a direction perpendicular to the, in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, in a direction perpendicular to the direction of magnetic field. बिल्कुल, और दूसरे एंगल में भी होगा, हम यहां पर sin 30 भी कह सकते हैं, तो फोर्स लगेगी sin 30 पे भी। देखो 0 पर नहीं लगेगी, लेकिन थीटा इक्वल टू 1 डिग्री होगा तो लगेगी, 2 डिग्री पे भी लगेगी, लेकिन फोर्स की वैल्यू कम होगी, मैग्नीट्यूड कम होगा। सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगी? व्हेन द चार्ज मूव्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। 30 डिग्री पे भी लगेगी, 45 पे भी लगेगी, 60 पे भी लगेगी, 89 पे भी लगेगी, 90 पे सबसे ज्यादा लगेगी। ये समझना है बस। और जिस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे पाएगी वो फोर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की। और अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को प्रिसाइजली डिफाइन कर रहा हूं। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब आप इस बात को, अब मैं आपको देखो 5 रूल आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, राइट हैंड पाल्म रूल, राइट? ये 4-5 रूल आपने अभी कवर करने हैं। राइट हैंड थंब रूल, द 5th वन। इन 5 रूल में से पहला रूल मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यू जस्ट नीड टू understand the first one which is known as Fleming left hand rule। कपिल वो लिंक शेयर नहीं किया तुमने बच्चों को 9th का? तो मेरे पास तारुषी का आया था, आप एक बार जरा देख लेना प्लीज, बात कर लो एक बार उससे। हैं? हाँ बेटा जी। तो अब मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताने जा रहा हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा।
राइट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, वही आंसर दे पाएगा जिसको ये रूल समझ आ गया। और रूल समझने के लिए जो सारी कथा मैंने कही थी, ये रूल समझाने के लिए कही थी। मैं फाइनली बता रहा हूं, ये मेरी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड थी। इस पॉइंट के ऊपर मैंने चार्ज को मूव कराया, चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी व्हेन द चार्ज मूव्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड d sin 90 डिग्री पर, राइट। अब वो जो फोर्स लगेगी उसके कारण चार्ज जंप करेगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या इधर जाएगा उधर जाएगा। तो वो किस दिशा में जाएगा इसका पता कहां से लगेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लगेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज द रूल which provides us the information about the direction of force experienced by the moving charge in a uniform magnetic field। ये मैं रूल आपको लिखवाऊंगा, आप पहले समझिए इस बात को जो मैं कह रहा हूं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि वो जो मूविंग चार्ज है, जो मूव कर रहा है और मैक्सिमम फोर्स उसको 90 के एंगल पे लगेगी, तो उस मूविंग चार्ज के जो फोर्स लगेगी, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है तो डायरेक्शन भी है, तो चार्ज किस दिशा में जाएगा इसका पता फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता देगा। लेफ्ट हैंड मतलब आप सबका लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड देखो, आप अपने लेफ्ट हैंड को उठाओ, अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो, राइट, इस तरीके से थंब के साइड वाली उंगली और सबसे लॉन्गेस्ट फिंगर, द सेंट्रल फिंगर। So there are 3 fingers of my left hand mutually perpendicular to one another. Isn't it mutually perpendicular to one another to your finger as well? The thumb is perpendicular to the finger adjacent to the forefinger, adjacent to the thumb. Sorry, the finger adjacent to the thumb is known as forefinger, F-O-R-E. The longest finger of our left hand is known as central finger. फोर फिंगर में एफ आता है, फोर फिंगर में एफ आता है या नहीं आता? F-O-R-E, राइट। मैग्नेटिक फील्ड में भी एफ आता है। तो फोर फिंगर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी समझा रहा हूं फिर डिफाइन भी करूंगा। फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, हाँ क्लियर, ये समझ में आ गया। सेंट्रल फिंगर में सी आता है, सी मतलब करंट। तो सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और हम इसको सेंट्रल फिंगर को ऐसे भी कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती, मतलब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सेंट्रल फिंगर में सी आ गया, फोर फिंगर में एफ आ गया। तो फोर फिंगर विच इज एडजेसेंट टू द थंब इज नोन एज इज मेंट फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द सेंट्रल फिंगर मेंट फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये जो चार्ज में मूव कराने की बात कर रहा हूं ना, वो चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसको हम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यों कहेंगे, अभी क्लियर करता हूं इस बात को, राइट। और थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज। इधर देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है या नहीं है सर? मेरी फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रही है या नहीं? नॉर्थ टू साउथ, राइट। द सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। आप अपने अपनी जगह पे देख सकते हैं। फिलहाल मेरे को देखें, ये वाली फिंगर, फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन। थंब किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। यानी कि यू जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड थी और चार्ज यू मूव कर रहा था बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन द चार्ज शुड एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। द चार्ज शुड एक्सपीरियंस द फोर्स, यानी कि चार्ज किधर की तरफ जंप करेंगे? ऊपर की तरफ, राइट। इसका मतलब ये है, जब मैं यूं कह रहा हूं ना डायरेक्शन ऑफ करंट, यू मेरे से दूर जा रही है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम मी, दैट मींस द चार्जेस आर मूविंग अवे फ्रॉम मी, that means this is the direction of current। तो इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे हैं मेरी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स तो मेरी तरफ आ रहे हैं। जैसे कि जब हम देखते हैं बैटरी लगाते हैं तो करंट का है, एक्चुअली
कन्वेंशनल डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है करंट की, लेकिन प्रैक्टिकली तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो मेरी तरफ आ रहे हैं यानी कि करंट है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग चार्ज क्रिएट्स करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? अपोजिट टू मी, अगेंस्ट मी, मूविंग अवे फ्रॉम मी। तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? दैट मींस द करंट डायरेक्शन इज मूविंग फ्रॉम मी टुवर्ड्स द अदर डायरेक्शन, अवे फ्रॉम मी। गॉट इट? तो सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन अगर अवे फ्रॉम मी है तो दैट कैन बी रिगार्डेड एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। Then the thumb represent the direction of force experienced by the positive charge, यानी कि electrons will jump in the upward direction। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ, करंट की बात कर रहे हैं। रूल के मुताबिक सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द करंट, और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं मैं आपको। इसमें क्वेश्चन में काफी बच्चे गलत आंसर देते हैं। हाँ, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो लेना ही नहीं है। है तो देखो नेगेटिव ही चार्ज, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं। प्रैक्टिकली तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज नाम की चीज मूव करती है क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन जो साइंटिस्टों ने फिक्स कर दी, पॉजिटिव टू नेगेटिव कर दी। वो पूरे वर्ल्ड में उसी की मान्यता चलती आ रही है, जो कि गलत है, पर क्या करें, कन्वेंशनल है, एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, राइट? तो कहने का मतलब है, इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल फिंगर अवे फ्रॉम मी, दैट मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स मी, नहीं? When the electrons are moving towards me, the direction of current would be against me. It is moving away from me. So this is the forefinger represents the direction of magnetic field, central finger represents the direction of current. Then the direction in which the thumb points. कहाँ है मेरा thumb? ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रॉन्स किधर जंप करेंगे? ऊपर की तरफ जंप करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब एक काम करता हूं, इसे उल्टा कर देता हूं। मैं अपने हाथ को यूं, जो मेरा थंब जो मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में था, ऊपर की डायरेक्शन में था, उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आता हूं। अब देखो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वही है, नॉर्थ टू साउथ ही है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन मेरे से दूर जा रहे हैं, तो करंट मेरी तरफ आ रहा है। The electrons are moving away from me, तो डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी टुवर्ड्स मी। तो जो सेंट्रल फिंगर है, ये सेंट्रल फिंगर मेरी तरफ आ रही है। देखो यार, मेरी तरफ आ रही है नहीं, राइट? सेंट्रल फिंगर इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आप अपने आप को हाथ को करके कर सकते हैं ऐसा। आप कुछ ऐसे हाथ की डायरेक्शन लेके, सेंट्रल फिंगर शुड बी लाइक दिस, आपके साथ पीछे की तरफ जा रहा है, सेंट्रल फिंगर पीछे की तरफ जा रही है, तो थंब आपका ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ है या नहीं? आप अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे रखेंगे, थंब नीचे की तरफ हो, फोर फिंगर आपका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, तो सेंट्रल फिंगर इजंट इट इज मूविंग बिहाइंड यू, इज डायरेक्टिंग बिहाइंड यू, पीछे की तरफ। इस तरीके से है ना बेटा, आप इस तरीके से रखो अपना हाथ, जिसमें आपका थंब ऊपर की तरफ है। आपको अपने देखो लेटरल इन्वर्जन हो रहा है ना, आप अपनी जगह जो भी डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ ले रहे हैं, डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड, उसके मुताबिक आप अपनी फोर फिंगर को रखें। समझ में आया? आप जहां बैठे हैं, आपने एज्यूम किया नॉर्थ टू, आपने अपने, मैंने जैसे अपने राइट से लेफ्ट की तरफ नॉर्थ टू साउथ किया है, तो आप भी अपने राइट से लेफ्ट की तरफ नॉर्थ टू साउथ कर लो। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड उस तरीके से देख लो। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन मोशन पॉजिटिव चार्ज, तो थंब ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जंप करेंगे। लेकिन डायरेक्शन डेफिनेशन देते समय हम ये नहीं कहते द सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को हम कभी नहीं कहते, हम करंट को कहते हैं, हम करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या रूल समझ आ गया? अपनी अपनी जगह बैठकर देख लिया आपने? अपना लेफ्ट हैंड लो, अपनी फोर फिंगर के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करो, अपने आप आपको थंब बता देगा कि इलेक्ट्रॉन्स किधर जंप करेंगे। हाँ, क्या क्या कह रहे थे आप? ऐसे अगर आप नीचे करेंगे, when the electrons are moving towards me, the direction of current is away from me. When the electrons are moving away from me, the direction of current is towards me. Then in that case, the direction of force experienced by the electrons would be the downward direction, नीचे की तरफ। पूरे के पूरे चैप्टर का ये बेस था जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। क्या ये क्लियर हो गई? दिस इज व्हाट यू मीन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। So the objective of Fleming left-hand rule is to provide the direction of force experienced by the moving charge under the influence of uniform magnetic field. Right? देखो, Fleming left-hand rule states that if we imagine to hold Fleming left-hand rule states that if we imagine to hold three fingers of our left hand, if we imagine to hold the three fingers of our left hand mutually perpendicular to one another, mutually perpendicular to one another, mutually perpendicular to one another in such a way, in such a way that the forefinger represents the direction of magnetic field, in such a way that forefinger FORE forefinger represents forefinger represents the direction of magnetic field, central finger represents the direction of current, central finger represents the direction of current or motion or motion of positive charge or direction of motion of positive charge. Then the direction in which the thumb points. Then the direction in which the thumb points. Then the direction in which the thumb points represents the direction of represents the direction of represents the direction of force experienced by the moving charge. Experienced by the moving charge. राइट? इतना क्लियर होगा? क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड समझ आ गया? हाँ, तो उसके हिसाब से डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगी। बिल्कुल इसी का करेंगे, पर हम 90 डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि 90 पे ही सबसे ज्यादा फोर्स मिलती है। जब 90 पे ही सबसे ज्यादा फोर्स मिलेगी तो 90 के एंगल पर ही हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की पता लगेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और हमारा मकसद क्या है? एक पॉइंट पर हम सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे या इंटरमीडिएट निकालना चाहेंगे? मैक्सिमम। राइट और नॉट?
और एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया कि अगर चार 90 डिग्री के एंगल पर मूव करेंगे तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी, और जितनी सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये जो मैं बोल रहा हूं, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। 10⁻⁻⁴ लिखवाया था ना मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं हम। इसकी SI यूनिट होती है टेस्ला, कैपिटल T इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो क्वाइट ऑब्वियस है, क्वेश्चन आएगा डिफाइन 1 टेस्ला। अब देखिए मैं 1 टेस्ला डिफाइन कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमने ये बी को 1 टेस्ला कहना है तो स्टॉप राइटिंग, सब यहां देखिए। एफ को मैं ले लेता हूं 1 न्यूटन, चार्ज को ले लेता हूं मैं 1 कूलम, वेलोसिटी को ले लेता हूं मैं 1 मीटर पर सेकेंड, और एंगल को वही 90 डिग्री ले लेता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला when a charge of 1 coulomb, ये देखिए, when a charge of 1 coulomb moves with unit velocity, यानी कि moves with velocity 1 meter per second in a direction perpendicular to the direction of magnetic field experiences a force of 1 Newton। जब कोई 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करेगा, 90 डिग्री के एंगल पे मूव करेगा, तो उस पे 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी। तो अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी तो वो किसके बराबर होगा? 1 टेस्ला के बराबर होगा। हैव यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला? और ये भी बात समझ आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फोर्स। दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन। डिड यू गेट इट और नॉट? देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला magnetic field is said to be 1 Tesla if a charge of 1 coulomb, if a charge of 1 coulomb moves with unit velocity, if a charge of 1 coulomb moves with unit velocity in a direction, moves with unit velocity in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, perpendicular to the direction of magnetic field, experiences a force of 1 Newton, experiences a force of 1 Newton। ये जो भी डिटेल मैंने आज अपनी क्लास में अभी तक कराया है आपको, उसका सिग्निफिकेंस ये था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आप प्रैक्टिकली समझ सकें। ये डिटेल 100% आपको बुक में नहीं मिलेगी। आपने आज रात को सोने से पहले ही जो समझा है इसकी नोट्स तैयार कर लेना बेस्ट पॉसिबल वे में। अगली क्लास की डिटेल आपको मिल जाएगी, लखमीर सिंह में मिल जाएगी, एनसीईआरटी में मिल जाएगी, तो वो बेहतर समझ आएगा। आप सब कुछ आपको इतना आसान लगेगा कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कुछ समझने में, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो न्यूटन किकिंग एक्सपेरिमेंट हो, everything would be very easy for you to understand provided you just revise this entire class all over again, right? So this is here I am ending up the session। मैं यही रोक रहा हूँ, एनवेलप कर रहा हूँ मैं सेशन को। हाँ बेटे, हाँ हाँ, नहीं बेटे आप कुछ समझे नहीं इसका मतलब। क्यों नहीं बन रहा? ये जो पूरा स्पेस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है,
अब इस स्पेस के अंदर मुझे यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो रूल ये कहता है यहां मैं चार्ज को मूव करा दूंगा 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से मूव कराऊंगा। अगर वो मूव करते समय 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और अगर उनके ऊपर फोर्स लग रही है 1 न्यूटन तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट की निकल कर आएगी 1 टेस्ला। मैंने आपको शुरू में कहा था मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज। टेक्निकली हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालने के लिए। स्ट्रेंथ ही तो बताइए 1 टेस्ला 3 टेस्ला पर। स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ मतलब टेस्ला इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड आ गया इस फॉर्मूले से। जितनी फोर्स लगेगी अगर मान लिया यहां पर 3 टेस्ला होता है तो 3 न्यूटन की फोर्स लग रही थी। डायरेक्शन किससे पता लगेगी? डायरेक्शन वुड बी अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो तो है फोर्स की डायरेक्शन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की अपनी क्या डायरेक्शन है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अभी तो हम फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को समझ पाए हैं। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये इसका मैग्नीट्यूड है 1 टेस्ला, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको अगली क्लास में समझ आएगी। हो सकता है अगली में मैं पहुंच जाऊं वहां या उससे अगली में पहुंचूं, क्योंकि अगली क्लास में मैं मोटर करा दूंगा आपको, राइट। तो अगली क्लास के अंदर हम किकिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे और मोटर करेंगे। अगर ये दो चीजों के ऊपर क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझ आएगी तो आपको 50% चैप्टर समझ आएगा, हमारा 50% चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगले सेशन के अंदर हम फिर देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट। वो डायरेक्शन निर्भर करेगी कि जिस पर्टिकुलर कंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहे हैं उसकी शेप कैसी है। फ्यूचर की बात है, बाद में पता लगेगा आपको। उसके आधार पर हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, राइट हैंड पाल्म रूल। ये जो मैंने 3 रूल बोले हैं ना, इन 3 रूल के थ्रू हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लगेगी। मैग्नीट्यूड तो टेस्ला के फॉर्म में आ गया। क्या ये बात क्लियर है? तो आज के सेशन में कोई डाउट अभी तक, कुछ पूछना हो, कहीं कुछ भी कोई भी डाउट हो तो इसके क्लास नोट्स में भी आपको 5 मिनट के अंदर भेजूंगा।